नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। अब ये हो रहा था कि प्रीवियस क्लासेज में हम लोगों ने एसडीएलसी के सारे फेजेज को हम लोगों ने रीड कर लिया। तो एसडीएलसी के सारे फेजेज को मैं एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आपका तैयारी हो जाए एग्जाम के हिसाब से। अच्छा, एसडीएलसी कंटेन्स 7 phases. SDLC contains 7 phases. First one is recognition of need. In recognition of need, we focus on the problem. Means what is the problem of existing software? What is the problem of existing software and how we can do overcome the problem? Means how we can remove the problem from our application. ठीक है? Means how we can recognize the problem. Means we can do interview round, questionnaire round, fact finding technique. Fact finding technique means what are the things through which we can get the requirement regarding any program, regarding any application. Then requirement gathering means we have to gather the information of regarding software. We will gather the information of regarding software. मेरी बात समझ रहे हो आप? Requirement gathering में what are the input, what are the process, what are the output, what are the procedures, what are the subroutines, what are the functions, what types of data, heterogeneous data, homogeneous data, everything we will follow in the requirement of analysis round. Then डेटा कितना टाइप का होता है सर? डेटा ऐसे होता है फॉर्मल, इनफॉर्मल, बट बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस का मतलब होता सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा. होमोजीनियस का मतलब सिमिलर टाइप ऑफ डेटा. टाइप्स ऑफ डेटा. हेट्रोजीनियस का मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा. कोई क्लास में है जो बताएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस टाइप्स ऑफ डेटा एंड हेट्रोजीनियस टाइप्स ऑफ डेटा? The homogeneous similar kind of data, or heterogeneous which is not similar. Yes. Can you give the example for the homogeneous and heterogeneous types of data? No, sir, I don't know. Homogeneous means when we are taking text data, all data are text, then we can say that this is a text data and we can say that this is homogeneous. If there is a data like homogeneous text data, numbers data, graphics data, image data, animation data, mathematical data, every types of data combined into a single place, yeah, that is called heterogeneous data. That is called heterogeneous data. बात समझ रहे हो आप लोग? यस सर. तो फर्स्ट चीज, जब हम एसडीएलसी का मतलब होता है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, या इसको हम बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ही बोल सकते हैं. और इसमें हमने बताया कि रिकॉग्नाइज, फर्स्ट जो पॉइंट होता है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड. मींस व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर एंड हाउ वी कैन ओवरकम दैट प्रॉब्लम, or how we can remove that problem, that when we go to create the new system, candidate system, then that problem not exist in that candidate system. Okay, we are gathering in the requirement of analysis, we are gathering the data, information, functions, input, output, process, procedure, subroutine, everything. For what? For overcome the problem for the existing software, for overcome the problem of existing software और existing MIS software. सेकंड होता है, सेकंड क्या होता है बताओ तुम लोग?
सेकंड बताओगे? प्रत्यय प्रकाश, अनीशा, माही, कोमल, अंकु, निधि। का हेट्रोजीनियस होगा सेकंड सर। क्या होगा? हेट्रोजीनियस। वो तो डेटा टाइप्स हो गया हेट्रोजीनियस। मैंने बोला सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का फर्स्ट पॉइंट हुआ कोई भी सिस्टम का मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर हम डेवलप करने जा रहे हैं तो फर्स्ट पॉइंट होता है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसका होता है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड। सेकेंड पॉइंट बताओ, फिजिबिलिटी स्टडी। क्या होता है? फिजिबिलिटी स्टडी सर। हाँ, टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी बताइए आप लोग। टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी सर मतलब डाटा के हिसाब से। क्या कहे? टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी मतलब फिजिबिलिटी स्टडी का टाइप्स। फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय फिजिबिलिटी स्टडी? फिजिबिलिटी स्टडी है क्या चीज, ये बताएगा? हमने क्लास में बताया है। यस सर। क्या बेटा? यस सर। फिजिबिलिटी स्टडी क्या? हम आपसे पूछे डिफाइन फिजिबिलिटी स्टडी। हाँ सर, डिफाइन फिजिबिलिटी स्टडी, ठीक कह रहे हैं। Based on time. Yes, that is a one condition. Feasibility study. In feasibility study, we are doing a studying for candidate system. Which system? Not for the present system. We are doing a study for the candidate system. Candidate system मतलब न्यू सिस्टम, फ्यूचर के लिए, न्यू सिस्टम फ्यूचर के लिए। वेरी गुड। जो सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं, व्हाट एवर द सिस्टम वी आर गोइंग टू डेवलप, in that what system we are going to develop, in that system we have to do a study, feasibility study. We have to do a study for the candidate system. ठीक है, उसके बारे में हम उसका एवोल्यूशन करेंगे। इन फिजिबिलिटी स्टडी we will do evolution for the candidate system. We will do modification for the candidate system. We will do any process changing in the candidate system. तो feasibility study आप लोग समझ गए कि feasibility study is the study of new candidate system in which candidate we have to evaluate new system or we have to evaluate candidate system. सेकेंड टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी बताइए आप लोग। मैम सर एक टाइप हो जाएगा टाइम स्टडी। नहीं, वो टाइम होगा, स्टडी नहीं होगा। टेक्निकल हो जाएगा सर। टेक्निकल हो जाएगा सर, ऑपरेशनल हो जाएगा, इकोनॉमिकल हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। सुनो, टाइप्स ऑफ देखो फिजिबिलिटी स्टडी में क्या कहा मैंने कि वी आर डूइंग एवल्यूटिंग फॉर द न्यू सिस्टम या कैंडिडेट सिस्टम। उसमें क्या करते हैं? स्पेसिफिकेशन भी करते हैं, जनरलाइजेशन भी करते हैं। किसका करते हैं? कैंडिडेट सिस्टम का। जिस सिस्टम को हम बनाने जा रहे हैं उस सिस्टम का स्पेसिफिकेशन भी और जनरलाइजेशन भी। और टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी हम बता देते हैं, सुन लीजिएगा। टेक्निकल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, टाइम फिजिबिलिटी, लीगल फिजिबिलिटी, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फिजिबिलिटी। सुन लिए? यस सर। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी ये हुआ कि योर सॉफ्टवेयर इज टेक्निकली good or not, what candidate system you are going to develop that is strong in his coding, in his working environment, in his software configuration or not. मतलब टेक्निकल का मतलब वो सॉफ्टवेयर सही से बना है या नहीं, सही से वर्क कर रहा है या नहीं, सही से काम उसका एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। समझ गए? सेकेंड, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। इकोनॉमिकल का मतलब मनी से हो सकती, मनी सोर्सेज। इकोनॉमिक का मतलब मनी सोर्सेज। यस सर। जैसे कि हमने किसी कंपनी से लिया कि हम उस प्रोजेक्ट को
10 लाख रुपीज में बना के उस MIS एप्लीकेशन को हम दे देंगे। उस एप्लीकेशन को हमारा कॉस्ट जो मिला 10 लाख रुपीज, और हमको उसको बनाने में अगर 12 लाख या 14 लाख रुपीज लग जाए तो वो क्या सही है या फिर कंपनी के लिए लॉस हो गया? वो ये कंपनी का लॉस हो गया सर। अनीसा तुम भी बोलो। तो कंपनी विल गेट इन यस सर, लॉस हो जाएगा उसमें। बिग लॉस। तो पहला क्या हुआ? टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी का मतलब whatever we are going to develop a new software or candidate software that is feasible in technically good or not, configuration is good or not। जैसे हम लोग आज कोई सामान परचेज करते हैं, मोबाइल परचेज करते हैं, लैपटॉप परचेज करते हैं, तो ये चेक करते हैं कि जो हम लोग ने परचेज किया है वो जो हम लोगों ने परचेज किया है वो देखते हो उसमें रैम। आज आप मोबाइल लेते हो या लैपटॉप लेते हो, देखते हो इसमें रैम कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, SD कार्ड क्या है, पिक्सल कैमरा कितना है, फ्रंट कैमरा कितना है, बैक एंड कैमरा कितना है, फ्लैश कितना है, चेक करते हैं कि नहीं? यस सर, जो प्रेजेंट करते हैं, जो लेते हैं उसको न्यू वर्जन बोलते हैं ना सर। हाँ, तो क्या कहते हैं, व्हाई वी आर चेकिंग द फंक्शनैलिटी? because we have to use in future of that product. What is the future of the product? आप कोई सा सामान लेते हैं, लैपटॉप आज लेंगे तो आप लेटेस्ट वर्जन लेते हैं कि पुराना वर्जन लेते हैं? लेटेस्ट लेते हैं सर। लेटेस्ट वर्जन। Why we are taking latest? क्योंकि हम सारे because we have to use it in future, सारे फीचर्स को हम यूज कर सके। तो आप समझ गए, टेक्निकल फिजिबिलिटी आप समझ गए होंगे। यस सर। इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी क्या है कि व्हाट एवर कॉस्ट यू आर गेटिंग फ्रॉम द क्लाइंट, that project is completed in that amount or not. If that project is exceeded from that amount, that is not for the organization economically. बात समझ गए होंगे आप लोग? यस सर। तो पहला टेक्निकल, सेकंड इकोनॉमिकल, थर्ड आया बिहेवियरल। बिहेवियरल का मतलब हुआ कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, वॉट एवर योर सॉफ्टवेयर इज, that is working in proper manner or not, that is working in proper manner or not, means आप कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो वो ढंग से ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप उसको डबल क्लिक कर रहे हो, ट्रिपल क्लिक कर रहे हो, कोई एप्लीकेशन होता है कि सिंगल क्लिक आपने किया, दैट एप्लीकेशन इज वर्किंग वेरी वेल मैनर। आप वेब एप्लीकेशन कोई यूज करते होगे, आप लोग कोई सा वेब एप्लीकेशन तो देखते हो, जैसे फेसबुक आप लोग यूज करते हो, लाइक डालते हो तो वहां पे आ जाता है कि आपका कमेंट हो गया, या कमेंट डाले आपका कुछ शेयर किए तो आपका शेयर हो गया। कभी कभी होता है कि एप्लीकेशन काफी टाइम ले लेता है कोई चीज को शेयर करने में, लिंक करने में, लाइक करने में, देखेंगे नहीं कभी ऐसा? यस सर। तो ऐसा हम लोग भी एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करते हैं कि जो आसानी से इजिली ओपन हो जाए। तो उसके लिए हम सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऐसा करते हैं कि सॉफ्टवेयर जो इसका बिहेवियर है इस एप्लीकेशन का, MIS एप्लीकेशन का या वेब एप्लीकेशन का या विंडोज एप्लीकेशन का, इट वर्क्स इन वेरी गुड मैनर, इट वर्क्स इन वेरी गुड मैनर। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट, यस सर। नेक्स्ट है लीगल फिजिबिलिटी। लीगल का मतलब समझते हो? LEGAL, लीगल फिजिबिलिटी। यस सर। लीगल फिजिबिलिटी का यह मतलब है कि जिस सॉफ्टवेयर पे हम काम कर रहे हैं, ऑन विच सॉफ्टवेयर वी आर वर्किंग, और जिस डेटा पे हम लोग काम कर रहे हैं, ऑन विच डेटा वी आर वर्किंग, दैट इज जेन्युइन और नॉट जेन्युइन, दैट इज जेन्युइन और नॉट जेन्युइन। मतलब वो डेटा जेन्युइन है या नहीं है। अगर आप जेन्युइन डेटा पे काम नहीं करोगे तो हो सकता है जो आपने एप्लीकेशन बनाया है, सामने वाला कंपनी, मान लीजिए आप, सुन लीजिए, आप MS विंडोज 10 पे आपने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है, विंडोज 10 पे आपने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर आपने विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करके जो आपने बनाया, और बट जो विंडोज 10 आपके पास था, जिस मशीन पे ये सॉफ्टवेयर बना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम पायरेटेड था। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था? पायरेटेड था। तो क्या कल उस कंपनी का जो सॉफ्टवेयर बना है उसको, उस पे कंपनी, सामने वाली कंपनी
कंप्लेन कर सकती है, केस तक, केस भी या फाइल कर सकती है उस कंपनी के लिए कि आपने जिस सॉफ्टवेयर पे इसको बनाया है, इस प्रोडक्ट को, दैट प्रोडक्ट इज इनवैलिड। मेरी बात समझ रहे हो आप? यस सर। तो आप सब कुछ देखना है कि जो डेटा आप यूज कर रहे हो दैट इज लीगल और इलीगल, जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो दैट इज लीगल और इलीगल, जो इंफॉर्मेशन आप यूज कर रहे हो वो लीगल है या इलीगल। आप लोग बीबीए के छात्र हो, एक चीज होता है जो हम लोग हर कंपनी अपने प्रोडक्ट के पीछे लगाती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? जो सिंबल होता है, स्टेट बैंक का सिंबल, आईसीआईसी बैंक का सिंबल, जो सिंबल बना होता है उसको क्या बोलते हैं? लोगो। यस, लोगो। लोगो क्या है? आज आप कोई कंपनी खोलो और आप क्या दूसरी कंपनी का लोगो यूज कर सकते हो? नो सर, नहीं कर सकते हैं, ये लीगली काम नहीं। वो उस पर आप पे कंप्लेन हो जाएगा एंड योर कंपनी विल गेट बैड डेज। आपकी कंपनी के लिए बुरे दिन भी आ जा सकते हैं गलत काम करने के कारण। तो लीगल फिजिबिलिटी ये हुआ कि सॉफ्टवेयर के बारे में, डेटा के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में, ग्राफिक्स के बारे में, इमेजेस के बारे में, सब कुछ के बारे में सही जानकारी लेना। उसके बाद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये कौन बताएगा? अनीशा, माही, कोई है? प्रत्यय, प्रकाश? यस। Who will tell me about the cost benefit analysis? यस सर। बताओ सर, जैसे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए अगर किसी का कोई कंपनी है, अगर वो 10 लाख रुपए दे रही है और उससे अगर उससे कम यानी 8 लाख में ही हमारा सॉफ्टवेयर बन गया, उस कंपनी को हम दे दिए, तो उसे हमारे बेनिफिट 2 लाख का हो गया, तो इसे ही हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहते हैं। हाँ, अब सुन लीजिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। सॉफ्टवेयर का कॉस्ट, सॉफ्टवेयर का कॉस्ट, हार्डवेयर का कॉस्ट, और जितने भी प्रोग्रामर, जितने भी ह्यूमन रिसोर्स लगे हुए कंपनी के अंदर, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, बिजनेस एनालिस्ट हो, सिस्टम एनालिस्ट हो, डेटा एनालिस्ट हो, सॉफ्ट टेस्टिंग टीम हो, सारी टीम को, प्रोजेक्ट मैनेजर हो, प्रोजेक्ट लीड हो, सबको मिलाकर। इलेक्ट्रिसिटी भी तो हो सकती है। क्या कहे? इलेक्ट्रिसिटी भी तो हो सकती है सर। हाँ, फिर मैं बता रहा हूं, पहले ह्यूमन रिसोर्स का कॉस्ट आ गया, एक कॉस्ट, सॉफ्टवेयर का कॉस्ट, हार्डवेयर का कॉस्ट, इंटरनेट का कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट, टी स्नैक्स का भी कॉस्ट को कंपनी ऐड करती है, जिसको हम लोग मिसलेनियस कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिसलेनियस कॉस्ट। मिसलेनियस कॉस्ट। मिसलेनियस कॉस्ट भी होता है। तो हम आपको लगता है, हमें लगता है कि बस कंपनी एम्प्लॉय को पैसे दे रही है और काम हो रहा है। बहुत सारे कॉस्ट, बहुत सारे कंपनी काफी पे करती है, तो उसे बोलते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फिजिबिलिटी। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। अब एनालिसिस बताएगा। एनालिसिस बताइए आप लोग। ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, एसडीएलसी 1000% आपके एग्जाम में आएगा। हो सकता है 10 नंबर में आ जाए, 15 नंबर में आ जाए ये क्वेश्चन। एनालिसिस क्या होता है, मैं पूरी क्लास से पूछ रहा हूं, सब लोग केवल चुपचाप बैठे रहते हैं ऑनलाइन में। सर, एनालिसिस मतलब जैसे सर सॉफ्टवेयर बनाना होगा तो जो पिछले वाला सॉफ्टवेयर है, तो हम फ्यूचर के लिए उससे ज्यादा फंक्शन वाला, उससे ज्यादा क्वालिटी वाला, ये सब मतलब उसको एनालिसिस करके उसके बेसिस पे हम इससे ज्यादा फ्यूचर में उस सॉफ्टवेयर बनाए, उसको कहते हैं एनालिसिस करना। सभी जानकारी लेना जो करंट में है और फिर उससे बेहतर फ्यूचर में सॉफ्टवेयर बनाना। एनालिसिस का मतलब होता है कि वी विल गो इन डीप रूट, वी विल गो इन डीप रूट ऑफ दैट particular software, we will go in the deep root of existing software कि what are the input process, output procedure, DFDs, etc are here, और उसके बाद हम उसका डीप एनालिसिस करते हैं। और डीप एनालिसिस के बाद एनालिसिस दो प्रकार की होती है, एक नॉर्मल एनालिसिस कर लिए, एक होता है डिटेल्ड। डिटेल्ड का मतलब एक एक चीज के बारे में,
इसमें कितने टेक्स्ट बॉक्स बनेंगे इस एप्लीकेशन में, इसमें कितने बटन्स बनेंगे, बटन का कलर क्या होगा, कितने लेबल्स बनेंगे, HTML में क्या यूज होगा, फ्रंट एंड क्या यूज करेंगे, बैक एंड क्या यूज करेंगे, मिडिल वेयर हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या यूज करेंगे, ये सब किसमें आता बेटा, एनालिसिस का पार्ट है। हर चीज को अच्छे से देखना, हर चीज का एनालिसिस करना, सॉफ्टवेयर से लेके हार्डवेयर से लेके एक एक इमेज का, ग्राफिक्स का, मोशन का, एनिमेशन का। अब आया नेक्स्ट टॉपिक डिजाइन। क्या आया? डिजाइन। डिजाइन होता क्या, उसको मैंने पेन और पेपर पे बना लिया कि एनालिसिस हमने क्या, एनालिसिस का मतलब क्या होगा बताओ तुम लोग, एक मतलब बता दो एनालिसिस का। डीप नॉलेज, गेटिंग इंफॉर्मेशन। और कोई बच्चा नहीं बोलेगा क्या? चंदन कुमार। एनालिसिस मतलब जो भी कंपोनेंट का, जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं हमको, उसका हम पूरा एनालिसिस करते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स लगा है, क्या उसका कॉस्ट है, क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट है, क्या स्टैंडर्ड कॉस्ट लगा, ये सब एनालिसिस करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। और कोई बोलेगा? प्रत्यय प्रकाश। यस सर। बताइए। एनालिसिस मतलब सर किसी भी चीज को बनाने से पहले सर हम लोग एनालाइज करते हैं कि इसमें कितना कॉस्ट लगेगा, क्या क्या मटेरियल लगेगा, क्या लगेगा, उसके बाद सर हम उसको बनाते हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले जितने प्रक्रिया, जितना प्रोसेस होता है ना, उसी को एनालाइज करते हैं। मतलब एनालाइज करते हैं कि इसमें ये होगा, ये नहीं होगा, इतना कॉस्ट लगेगा, इतना नहीं होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट मापते हैं। ये सब सर एनालाइज हुआ जहाँ तक हमको। एनालिसिस के बाद जब सारी चीजें एनालिसिस हो जाती तो हम लोग आ जाते डिजाइनिंग फेज पे। किस पे आते? डिजाइनिंग फेज। डिजाइनिंग फेज पे। डिजाइनिंग फेज में क्या करते हैं कि जो भी चीज एनालिसिस हुआ उसको पेन और पेपर पे हम लोग उसको ड्रॉ कर लेते हैं। पेन और पेपर पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, और पेन पेपर के बाद ड्रॉ करने के बाद हम लोग उसको कंप्यूटर पे ड्रॉ कर लेते हैं कि इसमें फाइनली इतना ये बनेगा, ये होगा। डेटा फ्रंट एंड से डेटा बैक एंड की तरफ फ्लो करेगा, अगर बैक एंड से डेटा निकाले तो फ्रंट एंड पेज पे दिखेगा। मतलब ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ योर एप्लीकेशन, ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ योर एप्लीकेशन, व्हाट इज द कोडिंग सेक्शन, व्हाट इज द टेस्टिंग सेक्शन, सब कुछ उसमें डिजाइनिंग फेज में सब कुछ डाल दिया जाएगा कि सारा चीज आप कवर करेंगे। समझ लो मेरी बात? आपके पास मतलब आपके लैपटॉप में रहेगा, एक प्रोग्रामर के पास रहेगा कि हमको आज क्या काम करना है, तो डिजाइनिंग से देख लेगा कि ये टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, लेबल बनाना है, तो सब कुछ देख के करेगा कि हाँ डेटा फ्लो कहाँ से कहाँ मूव करेगा। डेटा फ्रंट एंड से बैक एंड मूव करेगा, बैक एंड से फ्रंट एंड मूव करेगा, HTML में सबमिट कर रहे तो वो डेटा कहाँ जाएगा, ग्राफिक्स डेटा कहाँ पे स्टोर रहेगा, नॉन ग्राफिक्स डेटा कैसे स्टोर होगा, प्राइमरी की कैसे बनेगा, फॉरेन की कितना बनेगा, सब चीज को डिजाइन सेक्शन में इसलिए दिखा दिया जाता है। मतलब आप समझिए कि उस प्रोजेक्ट का कंप्लीट वो डॉक्यूमेंटेशन हो गया, उस प्रोजेक्ट का कंप्लीट क्या हो गया, वो डॉक्यूमेंटेशन हो गया उस प्रोजेक्ट का, उस प्रोजेक्ट का वो कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन हो गया। हाँ, डिजाइनिंग के बाद हम लोग आ जाते किस फेज में आ जाते? पहला मैंने बोला रिक्वायरमेंट ऑफ एनालिसिस, सेकंड एनालिसिस, सेकंड फिजिबिलिटी स्टडी, थर्ड एनालिसिस, फोर्थ आ गया डिजाइनिंग। फिफ्थ किस में आएंगे? फिफ्थ में टीम या ग्रुप हो सकता है। कोडिंग सेक्शन में आ गए। किस सेक्शन में आ गए? कोडिंग सेक्शन। फिफ्थ में आ गए कोडिंग सेक्शन में। कोडिंग सेक्शन कोडिंग सेक्शन में क्या करते हैं? कोडिंग करते हैं। We are writing codes for what? Verification of application, validation of application, authentication of application, authorization of application, conditional checking, branch looping, data transforming, सब चीज की UI कोडिंग, यूजर इंटरफेस कोडिंग, डेटाबेस कोडिंग, बिजनेस लॉजिक कोडिंग, ये सब तुम लोग तो लिखते नहीं हो, हैं? लिखते हो सर? आप लिखवाते नहीं? सर हाथ चलते रहे। कोमल, क्या हम लिखवाए नहीं?
तो सर लिखवा दीजिए ना जो जो बोलते हैं, इतना ठीक है, फास्ट लिखो। बोलते तो नहीं लिख पाते हैं। देखो कोडिंग सेक्शन लिख लो, बाकी पहले वाला भी लिखना है क्या? रिक्वायरमेंट, ये क्लास क्या सर कल लिखवा दीजिएगा ना सर, परसों? यस सर, आज सिर्फ पढ़ा दीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में ठीक है, लिखवा दीजिए। परसों। लेकिन 3 तारीख को कितने बच्चे रहेंगे हमें डाउट है। सर रहेंगे, जितने बच्चे भी रहेंगे आप लिखवा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कोडिंग हो गया। कोडिंग के बाद हम लोग करते, जब आपका सॉफ्टवेयर रेडी हो गया तो फिर टेस्टिंग करते। टेस्टिंग क्यों करते? तो सॉफ्टवेयर सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, सॉफ्टवेयर इज वर्किंग इन वेल मैनर और नॉट। उसके बाद हो गया इम्प्लीमेंटेशन और पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब सॉफ्टवेयर को जो हम लोग इंस्टॉल करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन। और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद जो बाद में प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं हम लोग पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन। सुन रहे हो ना मेरी बात सब लोग? यस सर। यस सर। ठीक है, तो पढ़ते हैं। अटेंडेंस भेजना बेटा। यस सर, भेज देते हैं सर, 2 ले लिए अभी लो। और अंकु वगैरह कहाँ चले गया? निशा कहाँ चली गई? रक्सौल? यस सर, घर आ गए। अब माही तो हाजीपुर में बैठी हुई है। यस सर। और कोमल कहाँ है अभी? सर घर पे हैं, सीतामढ़ी। अब प्रत्यय प्रकाश कहाँ है? छपरा? यस सर। और ये कहाँ है पांडे? ये तो पटना ही है। अमृत कहाँ है? अमृत? ठीक है, अटेंडेंस भेज दो पढ़ते बेटा। यस सर, चला गया सर। ठीक है, तो मैं एंड कर रहा हूँ, मेरी क्लास है नेक्स्ट 1 बजे से, ठीक ना? ओके सर, थैंक यू सर। लेकिन 3 तारीख को आगे बढ़ना है कि लिखना है, ये बता दो अभी सब लोग। सर लिखना है। लिखवा दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू सर।